Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 57, second year mathematics, chapter number 2, differentiation. And we are discussing exercise 2.1 of chapter number 2. And today's topic is derivative of function. And today, inshallah, we will start exercise 2.2. And today's learning outcome are the students to differentiate the function of type y is equal to x power n, and when you find derivative of this type, this is also called the derivation by power rule. And also we will be able to find the derivative of the function of type y is equal to ax plus b power n, where n is p by q is an integer, and also in the form of a rational number, and q is not equal to 0 by using first principle. So these are the learning outcomes. And what is today's question? Today's question is, what is power rule or formula of differentiation? So as in the last lecture we discussed about the power rule, we tried this power rule by finding derivative of function of this type. If you have a function of this type f is equal to x power n, so you can directly find the derivative of this type function by using power. The power rule says that the power will come first into variable into power minus 1. So this result is called the derivative of this type of function. Okay, so we tried this power rule in our last lecture, in previous lecture. Similarly, you can see in this slide that function is given fx is equal to x power n. So when you find the derivative, it becomes power will come first into variable, and power minus 1 means power में आपने decrease करना है by 1. So this is the power rule or power formula of differentiation. And you can see in this example that the function is 3x power 5. So you can find the derivative of this type of function directly by using power rule. This 3 is a constant. This 3 will come as it is, and you will apply power rule on this x power 5. So this is power 5. Power 5 is multiplied by 3 and into x, and power minus 1. 5 minus 1 becomes 4. So 3 5s are 15 into x power 4. This is the derivative of this function 3x power 5. So this is the importance of power rule. So you can directly find the derivative of such type of function very easily. So today's inshallah we will discuss this type of derivative of this type of function, that ax plus b power n. So or like this function 1 over ax plus b. Here the function is in denominator, here the function is in numerator, where n is 1, 2, 3 and so on. So ये जो फंक्शन आपके पास किस तरह का फंक्शन होगा, ये जनरली फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह के फंक्शन आपके पास होते हैं. फॉर एग्जांपल 2x plus 5 और पावर आपकी फॉर एग्जांपल 3 है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो हम इसको देखेंगे कैसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. यहाँ पे जो a और b है वो आपके पास कांस्टेंट है, कोई भी नंबर्स हैं, x वेरिएबल है, और पावर जो है वो आपके पास -1 और 1 से लेके आपके पास जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है. मींस आपके पास 1 से लेके 100 कोई भी नंबर हो सकता है. इस तरह के जो आपके पास फंक्शंस होते हैं उन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हमने सीखना है अपने लेक्चर में. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो हम हमारे पहले वो डिस्कस करेंगे, और इस तरह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास है कि आपने फाइंड करना है dy over dx, और फंक्शन आपके पास है स्क्वायर रूट x plus 2, और सेकंड पार्ट में है 1 over स्क्वायर रूट x plus a. तो इनका अपने फर्स्ट से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें जो आपने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है, और देखें जो हमने बात की अभी ax plus b पावर 3. जनरली ये आपके पास a और b यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं. यहाँ देखिए 2x plus b पावर 5, 3t plus 2 minus 2. तो इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे तो हम देखेंगे तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. अब इसमें देखें आपके पास जो हमारा फंक्शन गिवन है बेटा वो है x plus 2 स्क्वायर रूट. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, हम फंक्शन को y के पावर लेट करते हैं, और स्क्वायर रूट के पास जो है अगर आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो 1/2 होती है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. हमने क्या किया, इसको पावर में लिख लिया x plus 2 पावर 1/2. अब आप x में चेंज आएंगे, ये x है, x में चेंज डेल्टा x आई, और साथ में प्लस 2 वैसे ही आ गया, और होल पावर 1/2. जब x में चेंज आएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी चेंज आएगी, तो y प्लस डेल्टा y. अब यहाँ से जो y है यहाँ प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो उसके कम माइनस y. ओके, अब मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट भी की है. मेरे पास यहाँ x plus डेल्टा x plus 2 है, तो मैंने x plus 2 पहले लिख दिया, बाद में डेल्टा x लिखा.
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक्स प्लस टू कॉमन ले लूँ, क्योंकि वाई जब आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी आपका एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू है, तो इन दोनों टर्म्स में मैं कॉमन ले लूंगा एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू। तो यहाँ से आपने सेकंड स्टेप में इसको एक्स प्लस टू को अलग किया और डेल्टा एक्स अलग लिखा और पावर वन बाई टू होल पावर वन बाई टू, और यहाँ वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी क्योंकि वाई आपने ये सपोज किया कि वाई फंक्शन के इक्वल। सो अब इस जो फर्स्ट टर्म में से मैं एक्स प्लस टू कॉमन ले रहा हूँ, जब एक्स प्लस टू कॉमन लूंगा तो आप देखें कि इसमें बेसिकली जब कॉमन लूंगा तो आपके पास ये पावर खाली एक्स प्लस टू नहीं आएगा बल्कि एक्स प्लस टू होल पावर वन बाई टू आ जाएगा कॉमन आपके पास, ठीक है। और ये जो आपके पास है यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ वन रह जाएगा, इसकी जगह वन आ जाएगा, और ये डेल्टा एक्स के साथ नहीं है एक्स प्लस टू, तो ये नीचे एक्स प्लस टू डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका टेकिंग फॉर्म। अब इसमें से जब आप कॉमन लेंगे और सेकंड टर्म में भी आपके पास वही सेम एक्स प्लस टू वन बाई टू, तो इन दोनों में से जब आप ये एक्स प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वन बाई टू, और फर्स्ट टर्म क्या रहेगी वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया। तो ये सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी, यहाँ पे एक्स प्लस टू हमने पावर वन बाई टू कॉमन लिया। अब आपके पास क्या है, इस पे आप क्या अप्लाई करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। आपके पास पावर फ्रैक्शन के अंदर तो हम बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे। बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है कि आपके पास अगर वन प्लस एक्स की फॉर्म के ऊपर और पावर आपके पास कोई भी इंटीजर है, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन में है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है इसका, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर और सो ऑन। तो हम यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर तक, बाकी टर्म्स हमें आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के आगे जो एक्सपेंशन होगी। तो फर्स्ट वैल्यू वन वन वैसे ही आ गई इंटू एन एक्स, एन आपके पास क्या है वन बाई टू और एक्स ये होल वैल्यू एक्स है आपके पास। सिमिलरली एन आपके पास है वन बाई टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और एक्स जो आपके पास दिस वन इसका स्क्वायर और सो ऑन यहाँ पे, और ये लास्ट माइनस वन आपके पास ये आ गया। अब पहली टर्म प्लस है और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस वन है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ तक सेम जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही हमने सॉल्व किया इसको बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। अब आप देखें कि सब में जो है ना, सब टर्म के अंदर ये डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस टू ये कॉमन है आपके पास। इस फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है, सेकंड टर्म में उसका स्क्वायर था तो एक आपके पास कॉमन आ गया, आपके पास वन पावर रहेगी। आगे टू, आगे आपके पास थ्री है तो एक कॉमन आ रही तो टू रहेगी। तो सो ऑन ये आपके पास डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस टू जो है ये हर टर्म में मौजूद है, और आपने इस सब में कॉमन था तो ये आपने डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया। अब ये देखें नीचे एक्स प्लस टू की पावर वन है और नीचे ऊपर जो है आपके पास न्यूमरेटर में एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू है। ये दोनों जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो वन बाई टू माइनस वन दिस बिकम्स माइनस वन बाई टू। ओके, सो दिस आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट माइनस वन बाई टू। ओके, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास डेल्टा एक्स, थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस। ओके, डेल्टा एक्स आपका सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं। अभी डेल्टा एक्स जो आपके पास कैंसिल आउट हो गई, लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स टू जीरो, तो राइट लेफ्ट साइड पे तो आपके पास डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव की, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन इसमें देखें जब आप इसको इनसाइड जो आपके पास वैल्यूज है उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू वन बाई टू है तो इसमें आप डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये एज वन बाई टू एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड टर्म में डेल्टा एक्स आपके पास है, हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स बाई टू मौजूद है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो लिमिट आपके पास डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो है। और हर टर्म अगले वाले टर्म में आपके पास डेल्टा एक्स की जगह जीरो हो जाएगा, तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास वन बाई टू आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये वन बाई टू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस टू माइनस वन बाई टू, ये आपके पास डेरिवेटिव है ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो सेम लाइंस के ऊपर जिसका हमने फोर स्टेप डिस्कस किए बेटा, ये हमने सॉल्व किया इसको। तो इस तरह का सेकंड पार्ट भी बेटा आपके पास एक्स प्लस पावर, आपके पास अब यहाँ पावर क्या है बेटा, पावर माइनस वन बाई टू है, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है कि ये आपके पास डिनोमिनेटर में था स्क्वायर, जब उसको आप ऊपर लेके गए तो आपके पास जो पावर वन बाई टू थी वो माइनस में आपके पास कन्वर्ट हो गई। सेम लाइन के ऊपर एक्स के अंदर चेंज आएगी डेल्टा एक्स प्लस ए, और वाई में भी चेंज आएगी होल पावर माइनस वन बाई टू, डेल्टा वाई वाई वहाँ जाकर माइनस हो गया। अगेन आप उसको अरेंजमेंट की, यहाँ पे वाई प्लस ए पहले लिख दिया और डेल्टा एक्स बाद में, और वाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू। अब इसमें से आपके पास ये अगर कॉमन लें एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू, तो आपके पास यहाँ पे वन आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास आफ्टर टेकिंग कॉमन, जब ये कॉमन ले लिया आपने, ये x प्लस ए इस टर्म के साथ भी मौजूद है और सेकंड टर्म में मौजूद है, तो दोनों में से आप कॉमन एक चीज ले सकते हैं। दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास ये कॉमन आ गया, फर्स्ट वैल्यू में आपके पास क्या रह गया वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स टू वन बाई माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे आपके पास माइनस वन बाई टू।
सो अब आप क्या करेंगे, सेम लाइंस के ऊपर इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज। यहाँ पे n क्या है, -1/2। तो सेम लाइन के ऊपर आपने 1 + nx इंटू n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्केयर सो ऑन, और लास्ट वैल्यू -1 ये आपके पास आ गई। तो लास्ट वैल्यू -1 विल बी +1 कैंसिल आउट, और आपके पास ये रिमेनिंग चीज रह गई है। इसमें से आप देखें ये चीज डेल्टा x बाय x + 1 और डेल्टा x + a का स्क्वायर इस सब में मौजूद है, तो ये चीज आप कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लेंगे, इस x + 1 और ये ऊपर जाकर सॉल्व हो जाएगी, -1/2 और -1 तो -3/2 इस केस में आ जाएगा, और ये 1/2 -1/2 फर्स्ट टर्म है, और इसको अगर सॉल्व करना है, करने नहीं करना तो इज अप टू यू टू। जब आप डेल्टा x जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, तो आपके पास सिर्फ -1/2 रह जाएगा आफ्टर अप्लाइंग लिमिट। ये 1/2 -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -1/2 x + a -3/2 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो जस्ट आपके पास क्या है, कोई पावर की साइन चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू, लेकिन आपको जो प्रोसीजर वो सेम एज इट इज है। तो आपने जस्ट प्रोसीजर को, स्टेप्स को फॉलो करना है, और उनको आपने जो भी फंक्शन हो उस पर आपने वो आपने उसको मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लेना। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न्यू चीज़ हो कि आप समझेंगे इसमें जो है हमें कोई एडिशनल स्टेप करने पड़ रहा है आपको। सेम लाइंस के ऊपर वही स्टेप्स आपने फॉलो करने। अब इसी तरह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 बेटा। इसमें अब हमने क्या है, ये फंक्शन जनरली हम देख रहे हैं कि y = ax + b, मतलब कि आपके पास इस तरह का फंक्शन है ax + b, और अपर पावर आपके पास कोई ना कोई पावर है होल नंबर, इंटीरियर आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब यहाँ देखें a की जगह कोई नंबर हो सकता है, b की जगह कोई नंबर है, बट x आपके पास जो है वेरिएबल है, और पावर भी आपके पास चेंज हो सकती है। तो ये बेसिकली आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं a और b, और ये 3 जो है ये पावर है, ये भी आपके पास ये चेंजेबल है। बाकी आपको इस तरह का फंक्शन होगा, पावर हो सकती है आपके पास नीचे आपके पास इस तरह का फंक्शन भी हो जाए ax + b डिनोमिनेटर में इस तरह का फंक्शन, और ऊपर जाके पावर में माइनस हो जाए। तो हमने देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 में उन स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लिया तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। सबसे पहला स्टेप वही कि y के पावर फंक्शन को लेट कर लिया। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने वही स्टेप्स जो है चारों फॉलो करने हैं। तो आप देखें ax ये है, तो अब इसमें जो आपके पास जब चेंज आएगी, देखें असल में ये ax है, तो जब आपके पास चेंज आएगी तो खाली x डेल्टा x नहीं आएगा, बिकॉज आपके पास जो a है a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ चीज देखनी है कि ये ax है बेटा, तो x में चेंज आनी थी, तो आपके पास कैसे आएगी चेंज, a और ब्रैकेट x + डेल्टा x, मतलब x में चेंज आई लेकिन x के साथ नंबर a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे a ब्रैकेट x + डेल्टा x, ये x में चेंज आई, तो इसको आपने ओपन किया, क्या बन गया a × x + a डेल्टा x। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब x अकेला होगा फिर तो x + डेल्टा x लिखेंगे, लेकिन a के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें कि 2x है आपके पास, तो इसमें आपने चेंज लानी तो कैसे आएगी, 2 आपके पास कांस्टेंट है, x में चेंज आएगी तो x + डेल्टा x ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 2x + 2 डेल्टा x। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे एक न्यू चीज है कि इसको आपने देखना है कि आपके पास खाली डेल्टा x नहीं आएगा, बल्कि वो आपके पास चेंज आएगी साथ a से मल्टीप्लाई भी होगा, तो दिस बिकम्स ax + b + a डेल्टा x, और पावर आपके पास एज इट इज आ गई। ओके, और सेकंड स्टेप में y जाके वहाँ माइनस हो गया, और y की जगह क्या लिख देंगे आप ax + b होल क्यूब, तो y जाके माइनस हो गया, y की जगह आपने ये। अब अगेन देखें ये टर्म है आपके पास सेकंड, आप चाह रहे हैं फर्स्ट टर्म के साथ ही मिल जाए, इस तरह टर्म मिल जाए ताकि मैं दोनों में से ये चीज कॉमन ले लूँ। यही टारगेट जिससे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए सॉल्व, यही सेम हमने इसी कंसेप्ट को यूज करना है कि ये सेकंड टर्म है आपके पास ax + b क्यूब होल क्यूब, ठीक है, और फर्स्ट हमारे पास जो है ax + b + a डेल्टा x। तो अगर मैं ax + b इसको मैं यहाँ से अलग कर लूँ, और जब मैं इसको कॉमन लूँ यहाँ से, तो आपके इस टर्म के अंदर जब मैं कॉमन लूंगा बेटा, देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ax, ये नीचे स्टेप किया हुआ है, देखिए इसमें से क्या किया मैंने, ये टर्म कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर क्या है आपके पास, पावर 3, ये आ जाएगा ax + b होल क्यूब, आपके पास कॉमन आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ गया आपके पास, इसकी जगह 1 आ गया। यहाँ पे a डेल्टा x है, इसमें ax + b नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसके नीचे वो डिवाइड हो जाएगा, और होल पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन सेम लाइंस के ऊपर आपके पास अब यहाँ आपने ये चीज कॉमन ले रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ 1 आ गया, और इसके नीचे जो है वो चीज सारी की सारी डिवाइड हो गई, क्योंकि इसके साथ वो चीज नहीं मौजूद, तो ये आ गया, और साथ में ये चीज आपके पास रहनी पड़ेगी। अब देखें ये फर्स्ट टर्म है कंप्लीट, ये सेकंड टर्म है, इसमें क्या चीज कॉमन है कि आपके पास कॉमन है दोनों में, तो दोनों में से ये चीज कॉमन ले लिया आपने, आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और उसमें अब फर्स्ट टर्म के साथ क्या रहेगी, ये चीज रहेगी आपके पास, जो आपके पास आफ्टर टेकिंग कॉमन ये बच गई,
और इसमें से सारी की सारी टर्म ये चली गई आपके पास कॉमन, तो आपके पास सीधा -1 आ गया। तो फिर जब दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यही चीज वापस आ जाएगी। और लेकिन अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट दिस अगेन, तो बस ये चीज दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है आफ्टर टेकिंग कॉमन अगेन। अब आपके पास क्या है, ये चीज को आपने सॉल्व करना है, ऊपर क्यूब है तो डायरेक्टली आप a प्लस बी का क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको बाय यूजिंग बायनोमियल जो है सीरीज भी, तो क्यूब तक तो आपको फार्मूला आता है। तो आपने क्या किया, बायनोमियल सीरीज यूज की, a इंटू एन एक्स, आपके पास n क्या है, आपके पास दिस 3 और x क्या है, दिस वन इज अ होल x, a डेल्टा x इंटू a एक्स प्लस b, और प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और आपके पास a जो x है उसका स्केयर, x जो है वो कंप्लीट वैल्यू उसका स्केयर आ गया, और सो ऑन इसका क्यूब आ जाएगा आगे सो, और -1 ये आपके पास लास्ट वन। अगेन फर्स्ट वैल्यू और लास्ट टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गई, दोनों +1 और -1 है। अब आप देखें सब के अंदर ये 3 है, और आपके पास नेक्स्ट में भी 3 आपके पास आ रहा है, और इस तरह आप देखें इसमें जो हमारे पास कॉमन चीज आ रही है वो क्या चीज कॉमन आ रही है, दिस a डेल्टा x बाय x a x प्लस b। ठीक है, a डेल्टा x बाय a x प्लस b ये इसमें भी मौजूद है, इसमें इसका स्क्वायर मौजूद है, आगे इसका क्यूब पड़ा हुआ, आगे पावर 4 सब में ये वैल्यू मौजूद है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। इसको जब हमने कॉमन लिया तो ये 1 तो कैंसिल हो गया ना, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या रह गया, आपके पास खाली 3 रह गया, और नेक्स्ट में आपके पास ये नंबर वैसे मौजूद है, इसमें ये पावर 2 थी तो पावर 1 रह गई, और सो ऑन। ठीक है बेटा, अब आप देखें ये डेल्टा एक्स मौजूद है। ठीक है, इस ए एक्स वाले आप ऐसे करें, ए एक्स प्लस बी की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएं और इसको सॉल्व कर लें, तो 3 ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऊपर जाकर -1 होगा, तो ये पावर आपके पास क्या बनेगी, एक्स प्लस बी पावर 2, और आपके पास क्या बच जाएगा, ए डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स आपके पास आ गया। अब आप जब इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल, आपके पास खाली ए रह जाएगा। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, जब लिमिट अप्लाई की बेटा आपने, तो ये देखें लिमिट अप्लाई करने से ये 3 के साथ डेल्टा एक्स नहीं मौजूद, और जो नेक्स्ट तमाम टर्म जो उसके अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स से 0 को 0 पुट करेंगे तो तमाम वैल्यूज नेक्स्ट वाली तमाम 0 हो जाएंगी। आपके पास क्या रहेगा, खाली ये 3 बच जाएगा आपके पास, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर a मौजूद है और साथ में ये वैल्यू मौजूद है, सो दिस बिकम 3a ax plus b होल पावर स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जो चीज एक आपने लेकिन न्यू हमें देखी है, यहाँ पे बेसिकली अगर इस तरह का फंक्शन कोई भी होगा 3x प्लस 2 और पावर जो भी हो, तो जब इसमें आप चेंज लाएंगे बेटा, तो चेंज आपके पास खाली x में ये नहीं लिखेंगे कि 3x प्लस डेल्टा x लिख दिया आपने, इस तरह नहीं, बिकॉज क्योंकि ये चीज गलत है, इसमें x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास इस तरह आप चेंज लाएंगे कि 3 इंटू x में चेंज आएगी तो x प्लस डेल्टा x, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसमें क्या रिजल्ट आएगा कि 3x इंटू 3 टाइम्स जो चेंज आई है आपके पास 3 डेल्टा x। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बाकी स्टेप सेम है, बायनोमियल सीरीज यूज कर रहे हैं, यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों टर्म को सॉल्व करके कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की टर्म आपको फर्स्ट में मिल जाए, फिर इन दोनों में से वो चीज कॉमन ले रहे हैं, तो जब बायनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं पहली टर्म y1 और लास्ट टर्म -1 इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, इसमें से फिर आपके पास डेल्टा x वाली टर्म कॉमन आती है, इस वाले को कॉमन लेते हैं, डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, डेल्टा x आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो बकाया सारे डेल्टा x होते हैं वहाँ 0 आप पुट कर देते हैं, और उसके बाद सॉल्व होकर जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है वो आपके पास डेरिवेटिव होता है जो गिवन फंक्शन का। तो ये सेम लाइन के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन होने हैं इसके, और इसमें हो सकता है a की जगह मैं 2 लिख दूं बेटा, और b की जगह 6 लिख दूं, और पावर जो आपके पास यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए, और पावर आपके पास 3 की जगह 6 आ जाए, 9 आ जाए, लेकिन आपके पास जो चेंज आनी है कोई चेंज नहीं आनी, जस्ट आपके पास वैल्यूज चेंज होनी है और स्टेप्स को फॉलो करना आपने, और आपका आंसर आता है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स है वो अपने जो पास सेकंड पार्ट है वो ट्राई करना है, और तो इंशाल्लाह फिर हम फर्दर जो है उसको देखेंगे कि वो आपके पास जो बाकी डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपका जो प्रैक्टिस वर्क ये है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो आज हमने पार्ट किए वो आपने देखने हैं, उसको प्रैक्टिस करनी है उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 देखा आज हमने, और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको आपने जरा देखना है। एक वीडियो देखते हैं उसमें आपके साथ डिस्कस किया है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में। In this lesson, I'll show you how to find the derivative using first principles. The formula for first principles is shown right here, where dy over dx is equal to the limit as delta x approaches 0 for the following expression.
f at x plus the change of x minus f at x over the change of x. Before I do this, I want to talk to you about why we actually use derivatives. Let's pretend that we had a function and we graphed the function on an xy plot and it looked like this. Derivatives are used to see how fast a particle along this curve is moving at one particular instant. So for instance, if I want to find out how fast the purple particle shown here is moving at this instant, I can take the derivative of this function, then substitute what x is equal to into that derivative and find out the rate of change. Now that you see the purpose behind this, let's go ahead and find the derivative of f at x is equal to x to the power of 2 using first principles. I'll start off by writing dy over dx is equal to the limit of delta x to 0. And here, f at x plus x delta will be placed into my function. So this part right here will be placed into my function, where I end up with x plus delta x to the power of 2 minus f at x, which is defined as x squared, over delta x. Next, I will expand this part, and I'll do that over here. X plus delta x times x plus delta x. Treat this like you're treating two binomials being multiplied. X times x is x squared. That times that. X times delta x is x delta x. Delta x times x is the same thing as the previous term, and this times this is equal to delta x squared. Combining these two terms, I end up with, and I'll write it out over here, the limit as delta x approaches 0 is x squared plus 2 of these, x delta x, plus delta x squared, and don't forget this part, minus x squared, over delta x. I'll clean this up for you, just so that you get a better view. Okay, now that I've cleaned up the view, what you'll notice is that this x squared and this minus x squared will cancel out, leaving me with the limit as delta x approaches 0 is equal to this top part, where I have 2x delta x plus delta x squared and delta x at the bottom. Notice that these two terms, a delta x is factorable. So I can factor out, and I'll highlight it, this delta x and one of these. If I do that successfully, I'll end up with the following. Delta x bracket 2x plus delta x. Now, this term will cancel out with this term, leaving me with the limit as delta x approaches 0. I'll input 0 into here, and I end up with dy over dx is equal to 2x. Therefore, the derivative of x to the power of 2 is simply 2x. Luckily, we don't have to go through all of this to find the derivative. We have developed other techniques that will simplify the whole process, and you can find them in other videos found on our channel. And there you have it. That is how to find the derivative using first principles. So this is about today's lecture. इसमें आज हमने क्या सीखा है कि हमने जो फंक्शन इस टाइप का जो फंक्शन है ax plus b पावर n पावर n वो मींस कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और इस तरह हमने पावर रूल के बारे में आज दोबारा देखा कि पावर रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके कैसे उसको डायरेक्टली आपको अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जो आपके पास फंक्शंस पावर के फॉर्म में होते हैं. सो आई होप कि आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की. इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो आप मुझसे बाद में डिस्कस करें. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे, उसके फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको